Hello students, I am from Divine Touch International School and today we will see the next part of number system that is your first chapter of your class 9. So up to our previous things we know that different type of numbers, that is whole number, that is rational number, that is irrational number, that is natural number. So just move on the example. So here on the board, so the first example is every whole number is a rational number. Every whole number is a rational number. So let first we know that what is whole number and what is rational number. Okay, so here we know that different type of number. So just what is the answer? 1. Every whole number. Okay, so whole number that is represented by capital W. So start from 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so up to infinity. So that is whole number. And that another one is rational number. So rational number that is written in the form of capital Q. So it is written P upon Q, but with one condition, Q is not equal to 0. So that is whole number, that is rational number. So the question is, every whole number is a rational number. Every whole number is rational number. So we can take from here 1 to infinity. Let's take an example, that is 5. So 5 can written in the form of P 5 upon Q. So it is the form of P upon Q. Yes, here the 5 is a form, 5 can be written in the form of rational number. But there is only one condition, that we can write from 1 to infinity. Any number from 1, 2, 3, 4, 5 up to infinity, we can write whole number, but there is only one condition, that 0, we cannot write 0 in this form of 0. So this is not a rational number. So this statement is false. Okay, listen, there is one only condition. If I say that what is, if the number start from first to infinity. Okay, so if the number start from first to infinity, so we can write each number in the form of rational number. So from first to infinity it is true, but if we include 0, so 0 cannot be written in the form of 0 upon 0. That is not a rational number, because we have one property that rational number should not come, denominator should not be 0. So that this statement is false. Let's move on the example number 2, that every integers we know integers can be written in the form of capital Z, from minus infinity to minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4 and so up to infinity. Both side infinity, from 0 to right side positive numbers, from 0 to left side negative numbers. So every integers is a rational number. क्या सारे integers रैशनल नंबर हो सकते हैं? अगेन राइट द प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, दैट इज P अपॉन Q विथ Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां Q 0 नहीं होना चाहिए. तो यस, हम किसी भी नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं. लेट टेक एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव नंबर्स लाइक -3. सो वी कैन राइट -3 अपॉन 1. सो इट इज अ फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. लेट एन एग्जांपल 6. So 6 can be written in the form of 6 upon 1. So it is also a rational number. So first is false, the second one is true. Let's come on the third example. The third example, every rational number is an integer. That is, you can see that every integer is a rational number or every rational number is an integer. It is a reverse of question number 2. Here every integer is a rational number. Here every rational number is an integer. So you can see that example 2 and example 3 both are inversely proportional to each other. So just take the question number 3, answer number 3. So every rational number, so we can write rational number in the form of Q, that is P upon Q, where Q is not equal to 0. That is the property of rational number. Let's take integers. So integers, that is Z, from minus infinity to minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 and up to infinity. So this is the thing, rational number, this is the integer. So for the second question, every integer is a rational number. Yes, सारे integers rational number होते हैं. So for this question is true, but every rational number is not an integer. सारे rational number. Let's take an example of rational number. Like rational number का example हमने लिया -3 upon 5. तो
तो क्या -3/5 इंटीजर्स है? नो, बिकॉज इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो कंप्लीट नंबर होते हैं, -3, -2, -1, 0 अप टू, बट -3/5 ये जो नंबर है, ये जो नंबर किसी भी 2 डिजिट के बीच में आएगा, और जो बीच में जो नंबर आते हैं वो रेशनल नंबर नहीं हो सकते। सो एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। तो हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो है फॉल्स। आप यहां से भी देख सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज रेशनल, बस सारे इंटीजर्स रेशनल हो सकते हैं, दैट इज ट्रू, बट सारे रेशनल नंबर इंटीजर हो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, हो सकते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस में पॉसिबल नहीं है। सो द फॉर द थर्ड एग्जांपल दैट इज फॉल्स। सो फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, दिस इज द एग्जांपल नंबर 1 of your class textbook. Okay, just move on the example number 2. Here example 2, that is find the 5 rational number between 1 and 2. Find 5 rational number between 1 and 2. फर्स्ट जस्ट नो द व्हाट इज द क्वेश्चन, कि हमको 1 and 2 दोनों होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है, तो हमको 1 and 2 के बीच में, जैसे कि लेट मी ड्रॉ दैट इज अ नंबर लाइन, that is 0, that is -1, that is -2, that is -infinity, that is 1, that is 2, that is plus infinity. So हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 and 2, तो 1 and 2 के बीच के अंदर हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। जैसे कि हमने पहले देखा कि किसी भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट टाइप ऑफ रेशनल नंबर्स है, किसी भी 2 नंबर के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट टाइप ऑफ नंबर है, लेकिन हमको सिर्फ 5 प्रूफ करना है, 5 फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? तो उसका एक मेथड है। वो मेथड किस तरह से काम करता है? उस मेथड में हम क्या करेंगे कि हाउ मेनी वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर। सो 1 यहां लिखेंगे, 2 यहां लिखेंगे, कितने फाइंड करना है? 5। तो जितने भी हमको नंबर फाइंड करना है प्लस 1 ऐड कर दीजिए, तो 5 + 1 दैट इज 6। सो दैट इज, लिसन वन थिंग, कि हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो 5 + 1 6। अगर क्वेश्चन ऐसा होता है कि हमको फाइंड करना है 10 रेशनल नंबर, तो 10 + 1 11। जितने भी नंबर आपसे पूछे गए हैं कि आपको उतने रेशनल नंबर फाइंड करना है, प्लस 1 आप ऐड कर दीजिए, तो 5 + 1 6। सो क्या हम 1 को इस तरह से लिख सकते हैं? 1/1, because if we divide 1 by 1, so we will get answer 1. So we have to here हमको क्या मिला था? 6। तो हमको इसके न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज यू आर इन अ क्लास 9th एंड यू नो इन योर प्रीवियस क्लास कि किसी भी मैथमेटिक्स इक्वेशन के अंदर अगर हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पे हमने न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे डिनोमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई किया, सेम टू सेम कंडीशन हियर। तो 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 = 2/1, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 रहेगा। तो जो केस हमने यहाँ पे किया, व्हाट वी डिड हियर, वी जस्ट मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6। सो वी आल्सो विल डू दिस सेम ऑपरेशन हियर। जैसे यहाँ पे हमने केस में 6 से मल्टीप्लाई किया, सेम टू सेम यहाँ भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 को न्यूमरेटर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और सॉरी न्यूमरेटर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 6 = 12, 6 × 1 = 6। Here 6 × 1 = 6 upon 6 × 1 = 6। सो अब हमारे पास में 2 नंबर आए, 6/6 और जो दूसरा नंबर मिला हमको 12/6। आप देख सकते हैं कि इसको हम डिवाइड करेंगे, 6 / 6 फिर से 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, फिर से 2 आ जाएगा। इसका मतलब हमने इक्वेशन में कोई चीज नहीं किया। अब हम ये दैट इज हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? दैट इज वेरी सिंपल, 6/6 12/6 कितने फाइंड करना है? 5। तो you can write 7/6, you can write 8/6, you can write 9/6, 10/6, 11/6। आपको क्या करना है? जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर सेम रखना है। यहाँ से 6, 7, 8, 9, 10, 11 और here that is 12। 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 and the final is 12/6। So कितने? 1, 2, 3, 4, 5। तो हमको 5 फाइंड करने थे, हमने फाइंड कर दिए। फिर से एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। हमको 1 and 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। हमें पता है कि इनके बीच में इनफाइनाइट टाइप ऑफ नंबर्स है।
हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया, नंबर लाइन में फर्स्ट पॉजिटिव यहाँ, सेकंड यहाँ पे, इसके बीच में हमको 5 फाइंड करना है, 5 रैशनल नंबर। सो हमारे पास में सिंपल वन फॉर्मूला, जितने आपसे पूछे गए हैं फाइंड रैशनल नंबर +1 कर दीजिए। तो 5 + 1 दैट इज 6। तो न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया। जो ऑपरेशन आपने यहाँ पे किया सेम टू सेम ऑपरेशन आपको यहाँ पे करना है। न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 × 2 = 12, 6 × 1 = 6। तो फाइनल आंसर क्या मिला? 6/6 एंड 12/6। अब एक एक नंबर ऐड करते जाओ न्यूमरेटर में, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। तो दिस इज द 5 रैशनल नंबर ऑफ योर बिटवीन 1 and 2। ये 1 and 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू आएगा वो 1 and 2 के बीच में ही आएगा। Okay, so we have completed 2 examples. That was a theoretical part, और एक हमने जो solve किया वो numerical part था। So just come on the exercise, that is 1.1 exercise of your class 9th. So first question is 0 is a rational number? क्या 0 rational number है? आपसे पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि क्या 0 रैशनल नंबर है। तो मैंने आपसे बताया था कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को किससे हम लिखते हैं बच्चों? दैट इज कैपिटल Q, और रैशनल नंबर को दैट इज फॉर्म ऑफ P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहां पे आपका Q 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो आपसे पूछा गया क्या 0 एक रैशनल नंबर है? यस, 0 आपका रैशनल नंबर है। बिकॉज अगर हम किसी भी नंबर को, सपोज आई हैव 0 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा क्या आंसर मिलेगा? 0 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा क्या आंसर मिलेगा? 0 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूंगा क्या आंसर मिलेगा? 0। इसका मतलब कि अगर 0 अगर न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर के अंदर 0 को छोड़ के, जो हमारी कंडीशन है, उस कंडीशन को छोड़ के अगर कोई भी नंबर आ जाएगा तो फाइनल आंसर हमको क्या मिलेगा? 0, 0 एंड 0। तो इससे ये प्रूफ होता है कि यस 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 को रैशनल नंबर हम काउंट करेंगे। सेकंड एग्जांपल, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। सेम टू सेम एग्जांपल नंबर 2 की तरह कि हमको 3 and 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। अगेन सेम प्रॉपर्टी, कितने फाइंड करना है? 6। सो मैंने आपको क्या बताया था, एक ऐड कर दो, 6 + 1 दैट इज 7। हमको 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। सो हियर द 3 एंड हियर इज द 4। ओके, कितने फाइंड करना है हमको? 6। तो 6 + 1 किया तो न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 1 को भी 7 से मल्टीप्लाई किया। तो 3 7 जा 21/7 1 जा 7। सो दैट इज योर फर्स्ट पार्ट। सेकंड 4, तो 4 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 4 जा 28/7 1 जा 7। तो यहाँ पे आपको फाइनल चीज क्या मिली? 21/7 और जो दूसरा नंबर मिला 28/7। तो आपसे यहाँ पूछा गया है 21/7 और 28/7। तो दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं? 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। सो आप 21/7 को आप यहाँ पे लिख दीजिए, 21 के बाद में 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 एंड 28/7। ये आपका फर्स्ट नंबर, ये आपका सेकंड नंबर, दैट इज 3, दैट इज योर 4। कितने नंबर फाइंड करना है? 6। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो दिस इज द सेम टू सेम एग्जांपल ऑफ 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। So that is your first rational number, that is 3, that is your second rational number, that is 4. So आपको क्या करना है कि 3 and 4 इस नंबर में से किसी भी नंबर को आप पर्टिकुलरली डिवाइड करेंगे तो उसका जो न्यूमेरिक वैल्यू आएगा, जो पॉइंट में वैल्यू आएगा, वो ऑलवेज बिटवीन 3 and 4. So this is the 6th rational number between 3 and 4. So take the question number 3. So that is find 5 rational number between 3/5 and 4/5. इससे पहले हमने क्या फाइंड किया सेकंड क्वेश्चन के अंदर कि 3 and 4 दो कंप्लीट डिजिट थे, होल नंबर थे, इसके बीच में हमको 6 डिजिट फाइंड करने थे। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि आपको 3/5 एंड 4/5 के बीच के अंदर 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास में ऑलरेडी एक नंबर है जो कि रेशनल नंबर है, 3/5 है, ये भी रेशनल नंबर है, 4/5 है, ये भी रेशनल नंबर है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, दैट इज अ
different case of between example number 2 compared to example number 2, question number 2. So here 3/4 and 4/5, इसके बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं. इसके अंदर एक स्टेप हमारा, और आप जैसे आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी एक चीज़ प्रिपरेशन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, दैट इज 3/5 एंड 4/5. इसके अंदर आपको क्या करना है कि 3/5 एंड 4/5, 3/5 एंड 4/5. सो कितने नंबर फाइंड करने हैं हमको नंबर फाइंड करने हैं 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं. तो हम इसमें क्या करें, आप किसी भी नंबर से 5 है तो आप 5 से ज़्यादा किसी भी नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए. तो हम यहाँ पे 3/5 है, तो चलो मैं इस एग्जाम्पल को ले लेता हूँ. 3/5, तो 3/5 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ. 10 से न्यूमिनेटर में और 10 से डिनोमिनेटर में. तो ये 10 3 ज़ा 30/10 5 ज़ा 50. सेम टू सेम 4/5, तो 4 को भी मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा. तो 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50. ये एक कंडीशन आप देख सकते हो कि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन देखा उसके अंदर भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे. यहाँ भी सेम केस कर रहे हैं, बस फर्क इतना है कि वहाँ पे आपके पास में होल नंबर था, यहाँ पे आपके पास रैशनल नंबर है. दोनों कंडीशन सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है. अब यहाँ पे आपके पास में न्यू नंबर आपको क्या मिला 30/50. यहाँ पे आपको सेकंड नंबर क्या मिला 40/50. आपको कितने फाइंड करना है 5. चलो स्टार्ट करते हैं. 31/50, 32/50, 33/50, 36/50, 39/50 एंड 40/50. अब 30 से लेके 40 के बीच में 10 रेशनल नंबर आते हैं, लेकिन आप कोई भी रेशनल नंबर वहां से क्लिक कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने कौन से लिए 31/50, 32/50, 33/50, 36/50, 39/50. आप ले सकते हैं 36/50, 37/50. इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर आप ले सकते हैं. हमसे पूछा गया है आपको सिर्फ 5 रेशनल नंबर चाहिए. हमने 5 1 2 3 4 एंड 5 हमने प्रूफ कर दिए. तो ये था हमारा कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5. So in the question number 4, that is the final question of your exercise 1.1, that is every natural number is a whole number. कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? तो हमको पता है बच्चों कि नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से लिखते हैं और नंबर N कहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 और इन्फिनिट तक सारे नंबर जाते हैं. होल नंबर W कहाँ से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 एंड अप टू इन्फिनिट तक. तो आपसे पूछा गया है कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं. सो यस, आप यहाँ से देख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट टू इन्फिनिट तक जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे होल नंबर हो सकते हैं. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, दैट इज ट्रू. आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट टू इन्फिनिट सारे नंबर होल नंबर में आ रहे हैं. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा है ट्रू. सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर. क्या सारे इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं? सारे इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में हमने पता है इंटीजर्स को हम किससे लिखते हैं z से. तो इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं -∞ से, -∞ अप टू -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड अप टू इन्फिनिटी तक. और क्या पूछा है कि क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं? होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 इन्फिनिटी. क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंटीजर है हमारा वो z से स्टार्ट होता है, -∞ टू -3 -2 -1 0. लेकिन सारे जो होल नंबर स्टार्ट होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं. तो ये जो नंबर्स हैं ये सारे होल नंबर्स हैं. लेकिन व्हाट अबाउट नेगेटिव नंबर्स? 0 से जितने नंबर स्टार्ट हुए वो तो हमारे होल नंबर है, लेकिन माइनस वाले भी तो नंबर है, लेकिन माइनस वाले नंबर नेगेटिव नंबर्स वो होल नंबर नहीं हो सकते. इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा वो है फॉल्स. सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते. एंड द फाइनल थिंग्स दैट इज द थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर. क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होंगे? सारे रैशनल नंबर Q रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q. Q इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए. तो क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि -3/5 ये एक रैशनल नंबर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है, बिकॉज होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में आएंगे. तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा होगा फॉल्स. तो हमारे स्टेटमेंट हुए ट्रू फॉल्स false. So this is so that was the complete exercise of your first chapter, that is 1.1. Next in the next session we will see the exercise number 1.2 and we will know that what is when we call a number is a irrational number. Thank you.